Good morning, children. Today we will do the last part of this chapter, that is disaster management. Okay, and we were doing the man-induced disaster. In the previous videos, one small topic of viral diseases was left out, that I will cover in this topic, and the last topic is the traffic problems. Now, viral diseases, we know these are the diseases caused by different viruses around us. When a large number of people over much wider area become victim of any disease, it is called epidemic. We know that you and we have faced such epidemic lately, isn't it? Within few months, हमने एक साल के अंदर ये epidemic face किया है. So we know the fear which we had gone through, and you must all be knowing about this corona effect. People lose their lives due to the diseases. अगर वो ज़्यादा spread हो जाता है, it is contagious. Okay, these virus diseases, some are contagious. So at times people lose their lives also. There is a faster increase in the number of patients of viral disease than the general disease. What happened? This being contagious, एक से दूसरे के तीसरे effect पड़ता जाता है लोगों में, and it goes on spreading out. Till today, thousands of people have been victims of disease like dengue, Ebola, swine flu, influenza, etc. Okay, these have the diseases which had been spread out, or means so many people, thousands of people have lost their lives because of dengue, Ebola, swine flu, influenza. These diseases are very much feared. In earlier times, lakhs of people were victims of plague. However, such deadly diseases are controlled now with the help of scientific invention and antiviral vaccines for safety. So many people had died because of plague also. Plague is what? If the number of rats or mouse increase in the city, तो उनमें से उनकी बॉडी में से कुछ ऐसे germs release होते हैं that goes on spreading, and that is harmful for the human body. So during the time of plague, so many people had died. Even in Surat also, if you know, so people had died because of this plague. But nowadays, because of the scientific inventions, we can say some precautionary vaccines have come up for all these diseases. तो कहीं कहीं हम इसका बचाव कर सकते हैं. बट अब जैसे कोरोना आया था, तो स्टार्टिंग में तो लोगों को पता ही नहीं था कि क्यों आ रहा है, क्या है. देन रीजंस मिल गए कि चलो बैट्स में से आ रहा है. तो वी केम टू नो हाउ इट इज स्प्रेडिंग आउट. तो लॉकडाउन आ गया. डोंट गो आउट, डोंट टच such things, isn't it? एक दूसरे से दूर रहो. These were the precautionary measures we came to know. Slowly and gradually people became aware of such disease. ध्यान रखा, मास्क पहना, सैनिटाइज किया. So अपना बचाव करके हम चले, तो we are safe. Now vaccines have also come up. Maybe in few months or 1 year's time period vaccine सबको लग जाएगी, तो we are safe. But then also when such new epidemic come up, a panic is there, a fear is there कि क्या होगा अब. Along with it, with new viral disease and those diseases which cannot be cured by traditional medicines, there is always a danger of widespread deaths or mankind. During the plague epidemic of Surat in September 1994 and recently swine flu and dengue epidemics, many agencies took preventive steps to prevent deaths. Isn't it? Not only government but non-government organizations also are working in this field to help the people at that time. Now, what are the remedies for viral diseases? Okay, we have to be vigilant about infection. Vigilant मतलब हमको अपना ख्याल रखना है. We have to take care about such infections. People should be acquainted with the reasons, results and safety about diseases through propaganda and transmissions. लोगों को रीज़न पता होना चाहिए क्यों ये एपिडेमिक फैल रहा है, उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसके सेफ्टी मेजर्स क्या है, सब लोगों को पता होना चाहिए. गवर्नमेंट मीडिया में देती रहती है, रेडियोज़ में, टेलीविज़न में, नेट पे बार बार सब ऐसी एड्स आती रहती हैं, सो दैट पीपल बिकम अवेयर. टेक द एंटी डिजीज़ वैक्सीन्स. अगर जिनकी भी वैक्सीन्स निकल गई है, तो वी हैव टू टेक सच एंटी डिजीज़ वैक्सीन्स. अरेंज फॉर स्पेशल सेपरेट वार्ड फॉर पेशेंट्स ट्रीटमेंट. ओके, दीज आर इन्फेक्शियस डिजीज़, सो स्पेशल वार्ड जो उनको, जैसे हम बोलते हैं ना, क्वारंटाइन कर दो, तो हॉस्पिटल्स में भी स्पेशल वार्ड्स आर देयर टू ट्रीट सच टाइप ऑफ पेशेंट्स. टेक स्टेप्स एज पर द गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शंस इश्यूड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन टू कर्ब द वायरल डिजीजेस.
ओके जो भी इंस्ट्रक्शंस आए हमको फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस या हमारी गवर्नमेंट जो हमको इंस्ट्रक्शंस देती है वो हमको फॉलो करते रहना चाहिए. Okay, now the last topic we move to is the traffic problems. Now this is a big problem nowadays we are facing, and we know why. Because the number of vehicles have been increased. Population increase हो गई है, number of vehicles have been increased. Now we have seen vehicles flying at a small speed and very close to each other on the roads of large cities. This situation is called traffic jam. You know, एक दूसरे के आस-पास vehicles ही vehicles हैं, एक दूसरे के बिल्कुल पास-पास चल रही हैं. Okay, the lanes are small and the number of vehicles are more. That is called as what? Traffic jam. When the means of transports come to an halt on the roads, the traffic problems occur. अगर कहीं पे वो पूरी ट्रैफिक रुक जाती है, हॉल्ट पे मतलब कहीं ना कहीं रुक जाए बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, कभी कभार फॉग की वजह से, कभी कभार रेन्स की वजह से ट्रैफिक स्लो हो जाती है, कहीं आगे कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो ट्रैफिक जैम हो जाती है. सो पीपल हैव टू वेट फॉर आवर्स एंड आवर्स कि रास्ता क्लियर हो एंड देन दे मूव आउट. Such a situation occurs frequently on busy roads or larger cities. The vehicular traffic comes almost to a standstill during peak hours of the commuting. At such tough times, the vehicle drivers, travelers and pedestrians experience mental stress. अगर घंटों घंटों एक ही जगह पे बैठना पड़े या एक ही जगह रुक जाना पड़े तो it is becomes a mental stress. People थक जाते हैं कार में बैठ बैठ के यहाँ उधर रुक रुक कर. At such tough times, the vehicle it takes time to control the situation or to restart the vehicular traffic. Smoke from vehicle and other dirty things create air and noise pollution. लोग हॉर्न बजाते रहते हैं तो नॉइज पोल्यूशन होता है, गाड़ी स्टार्ट रखते हैं तो एयर पोल्यूशन होता है. It becomes very polluted things. This affects the public hygiene of that region and also the growth of vegetation. Now growing urbanization has created the traffic jam. There is a long queue of vehicles. When those vehicles which undertake relief work and rescue operations are spreaded over the road, people lose their lives stranding of 108 ambulance. बहुत बार ऐसे ट्रैफिक जैम में जो रेस्क्यू ऑपरेशंस की गाड़ियाँ होती हैं वो भी फंस जाती हैं, तो जहाँ पे उनको पहुँचना होता है वहाँ पहुँच नहीं पाती हैं, इसके लिए लोगों की डेथ हो जाती है. एम्बुलेंस 108 की एम्बुलेंस ट्रैफिक जैम में फंस जाती है, तो अगर उसमें कोई पेशेंट है तो उसकी डेथ हो जाएगी, या उसको कहीं पहुंचना है और वो पेशेंट के पास पहुंच नहीं पाई तो भी डेथ हो जाती है. सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ ट्रैफिक जैम. Increase in traffic, negligence of drivers and due to the ignorance in understanding the signs and symbols put along the road cause many accidents every year and many people lose their lives. Death rate in India is very high due to the accidents on the road. Such time a victim of accident may become invalid permanently. बहुत बार लोग हमारे कंट्री के पढ़े लिखे नहीं हैं, दे आर नॉट अवेयर ऑफ द सिग्नल्स, इग्नोरेंट है, तो बिकॉज ऑफ देयर इग्नोरेंस दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द साइंस सिग्नल्स, एक्सीडेंट्स अकर. Incidents occur in newspaper frequently about the accidents caused by minors driving a vehicle. बहुत बार देखते हो those who are under 18, they have not even got their permanent license. या learning license में भी they understand कि भाई हमको तो पूरा अच्छी तरह गाड़ी चलाने आता है and they drive so very fast. This create accidents. On the highways, big disasters are caused due to the heavy vehicular traffic and uncontrolled speedy vehicles. हाईवेज पे स्पीड में ट्रक्स चलाते हैं, बस चलाते हैं, दिस क्रिएट एक्सीडेंट्स. एक्सीडेंट्स अकर एट अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग्स. ओके, एक्सीडेंट्स बहुत बार रेलवे क्रॉसिंग्स पे भी देखे जाते हैं. हैवी ट्रैफिक कॉजेज लॉस ऑफ टाइम एज वेल एज फ्यूल, इजंट इट. बहुत ट्रैफिक जैम है तो टाइम तो वेस्ट होता ही है जो उसमें लोग फंस गए हैं, बट बहुत बार गाड़ी चालू करके रख देते हैं तो वेस्टेज ऑफ फ्यूल इज ऑल्सो देयर. ओके, एंड जिन्होंने मैनेज किया हुआ हो टाइम कि हमको यहाँ पहुँचना है, बहुत बार टाइम पे पहुँच नहीं पाते हैं. ओके, if timely effective steps are not taken, advanced planning for traffic management and dedication to observe them are not implemented, then it is going to create risk of lives in the days to follow without any doubt. अगर हमने इस ट्रैफिक को अच्छी तरह मैनेज नहीं किया तो number of accidents will go on increasing and the number of lives lost will be on the higher side. Now what to do? Develop suburban townships near larger cities and connect them intensely by facilitating public transport system.
जो भी टाउन्स हम बना रहे हैं, देयर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम शुड बी डेवलप सो दैट पीपल यूज़ दैट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। अपनी व्हीकल्स कम निकालें तो ट्रैफिक जैम कम होगा। सेपरेट ट्रैक्स शुड बी मेड फॉर पेडिस्ट्रियंस एंड साइकिलिस्ट। मेन रोड से अलग छोटे ट्रैक्स बनाए जाएं जहाँ पे पेडिस्ट्रियंस मतलब जो पैदल चल रहे हैं वो, और साइकिलिस्ट के लिए अलग ट्रैक्स बनने चाहिए। एनक्रोचमेंट ऑन द रोड्स मस्ट बी रिमूव्ड। एनक्रोचमेंट मतलब जो जब्त की हुई ज़मीन होती है, तो बहुत बार देखोगे कि लोगों ने अपने वेरांडाज और ग्राउंड आगे बढ़ा दिए हैं, तो दे एनक्रोच द रोड्स, दैट शुड नॉट बी अलाउड एंड दैट शुड बी रिमूव्ड इमीडिएटली। व्हीकल्स जो हाई स्पीड पे जा रहे हैं, ओके, उनके ऊपर फाइन होना चाहिए, उनको बैन कर देना चाहिए। इवन दोज व्हीकल्स विच आर पुल्ड बाय मेन और एनिमल्स, जिनकी स्पीड बहुत कम होती है, उनको बैन कर देना चाहिए ड्यूरिंग पीक आवर्स, क्योंकि एक की स्पीड कम होगी तो दूसरों की स्पीड भी कम होती जाएगी। देन इंफॉर्मेशन शुड बी कन्वेड टू द सिटीजन्स। जो भी सिटीजन्स हैं, यू पीपल आर स्टडिंग इन योर बुक, सेम वे एवरीवेयर इन ऑल ओवर इंडिया बुक्स में ये सब ट्रैफिक सिग्नल्स, साइंस के बारे में बताया जाता है, प्रॉब्लम्स के बारे में बताया जाता है, सो दैट द पीपल आर अवेयर। देन पीपल गोइंग टू द जॉब प्लेसेस और बिजनेस एट द सेम प्लेस should use the same vehicles, isn't it? अगर 5-6 लोग एक जगह पे जा रहे हैं at the same place, they should use one vehicle. Digging and repairing work along the road should be completed immediately. अगर कहीं पे रोड का काम चल रहा है, डिगिंग चल रही है, तो वो जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए गवर्नमेंट को। A tradition should be developed to take out the processions, marriage processions or religious processions during the lean hours instead of peak hours of vehicular traffic. अगर कोई फेस्टिवल के टाइम पे प्रोसेशन निकालना है, परमिशन तो लेनी ही पड़ती है, बट दैट शुड बी इन लीन आवर्स। लीन आवर्स मतलब ऑफिस आवर्स के टाइम के बीच में नहीं। देखो जैसे सुबह को 8 साढ़े 8 से लेकर 11 बजे तक ऑफिस आवर्स होते हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ व्हीकल्स इंक्रीजेज। सेम वे इन द इवनिंग ऑल्सो नंबर ऑफ व्हीकल्स इंक्रीजेज फ्रॉम 5:30 to 8 o'clock 9 o'clock तक। तो उसमें इन टाइमिंग्स के बीच में प्रोसेशन नहीं निकालनी चाहिए। At the time of traffic jam, keep your vehicles in proper lane. Okay, ट्रैफिक जैम हो भी जाता है तो हमारी गाड़ियाँ एक प्रॉपर लेन में होनी चाहिए। Infrastructure like express highways, overbridges, flyovers, ring roads and bypass roads should be developed. Okay, हमको हमारी कंट्री में एक्सप्रेस वेज, देन फ्लाईओवर्स, बाईपास रोड्स, इनका ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप्ड हमको करना चाहिए। Every person going for the job should invariably use public transport at least once a week. हमको एक वीक में 1 या 2 बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाना चाहिए। वी शुड अवॉइड आवर ओन व्हीकल्स। यूज सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग अ कार। जब भी कार चलाएं हमको सीट बेल्ट पहनना है। देन प्रोविजन ऑफ हैवी पेनल्टी शुड बी मेड टू द ड्राइवर्स हु आर ड्रंक, जो ट्रैफिक रूल्स तोड़ रहे हैं या गाड़ी रेकलेसली चला रहे हैं, दे शुड बी फाइंड हैवीली। व्हाट नॉट टू डू? डू नॉट वायलेट द ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक रूल्स हमको नहीं तोड़ने हैं। ओल्ड व्हीकल्स यूज़ नहीं करने हैं जो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। ओके, ट्रांसपोर्टेशन गुड्स शुड नॉट बी कैरिड आउट। बड़े बड़े ट्रक्स हमको सिटीज़ के बीच में नहीं लाना है एक्सेप्ट नाइट टाइम और अर्ली मॉर्निंग। ओके, देयर इज़ अ बैन ऑन द हैवी ट्रक्स एंड हैवी व्हीकल्स इन द सिटी एरियाज ड्यूरिंग द पीक आवर्स। पीक आवर्स मतलब फ्रॉम मॉर्निंग सपोज 8:30 से 9 o'clock तक, इवनिंग तक वो बैन हो जाते हैं। फिर लेट नाइट उनके लिए खुलते हैं रास्ते कि चलो सिटी के अंदर से वो लोग पास हो सकते हैं। डू नॉट डिफेस द इंस्ट्रक्शन बोर्ड्स, साइंस और सिम्बल्स ऑफ द रोड्स, दीज आर मेंट फॉर व्हीकल ड्राइवर्स। जो इंस्ट्रक्शन बोर्ड्स हैं, साइंस है, सिम्बल्स हैं, हमको फॉलो करने, और डिफेस करना मतलब उनको ख़राब करके, स्क्रैच करके ख़राब नहीं करना है। वो लोग किसी को राह दिखा रहे हैं, कोई साइन बोर्ड है, अगर एक साइन बोर्ड ख़राब हो जाता है तो उसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं, isn't it? तो वी शुड नॉट डू ऑल सच थिंग्स। डू नॉट ऑल्टर द डिज़ाइन ऑफ द व्हीकल। व्हीकल की डिज़ाइंस ऑल्टर नहीं करो। क्यों? ध्यान भटक जाता है, अरे ये नई व्हीकल कौन सी आई है रोड पे, और एक का ध्यान बटा, उसका एक्सीडेंट भी हो सकता है उसकी वजह से। हमको सेलफोन्स यूज़ नहीं करने हैं while driving. When we are driving, we have to wear the seat belt or the helmet. Without that, we should not drive. Okay. Then we should not use the earphones or cell phones while we are driving. Then जो
ट्रैफिक की पुलिस खड़ी है, पुलिस जो कंट्रोल कर रही है उसके साथ कभी भी आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, उसकी वजह से ट्रैफिक जैम होता है, रीज़न यहाँ दूसरों का माइंड डाइवर्ट हो सकता है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो व्हाट दे आर फॉर आर सेफ्टी पर्पस, जो वो बोलते हैं हमको वो फॉलो करना है। देन माइनर चिल्ड्रन, गार्डियन शुड नॉट अलाउ द माइनर चिल्ड्रन टू ड्राइव व्हीकल्स, okay, if we are not having the license, the children are not having the license, they should not be allowed to drive, okay, that is prohibited by law. law उसको सख्त मना कर देती है कि children under 16 should not drive. Do not join a mob and obstruct the relief and safety work at the place of an accident due to your inquisitiveness. ओके, कहीं भी रिलीफ वर्क चल रहा हो या कोई पुलिस वाला अपना काम कर रहा हो या सेफ्टी वर्क चल रहा हो तो उसमें बीच में जाके दखल अंदाजी करके वो काम नहीं रुकना चाहिए हमारी वजह से। ओके, कि इनक्विजिटिवनेस मतलब हमारी जानकारी के लिए, अरे इधर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब जानने के लिए हम उनके ऊपर चढ़ जाते हैं, इसे इनके देखें हम क्या हो रहा है, वो सब हमको नहीं करना है। लेट देम डू देयर वर्क। ओके, नाउ we will move to the last topic, impact of the disasters on human life। अब इतने सब डिज़ास्टर्स होते हैं तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या सब होता रहता है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी डिज़ास्टर्स इफेक्ट ऑलमोस्ट एवरीबडी, सबको फ़र्क पड़ता है, बट द अंडर प्रिविलेज और द पुअर पीपल आर इफेक्टेड द मोर। ओके, नाउ फर्स्ट द इफेक्ट्स ऑन रिलीफ, जो देर इज़ अ हैवी डैमेज और अ टोटल लॉस ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, देन रोड्स, रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ आर बीइंग स्टॉप्ड, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी सब डैमेज हो जाती है बिकॉज ऑफ दीज नेचुरल डिजास्टर्स, स्पेशली लॉस ऑफ फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड ड्यू टू फ्लड्स, पूरी लैंड खराब हो जाती है ड्यू टू फ्लड्स। ओके, और इतना सब नुकसान होता है, दैट टू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ह्यूमन लाइफ, वी नो दैट so many deaths occur because of these natural disasters, and because of man-made disasters we see that people either die or permanently they become handicapped, health of the citizen deteriorates, then जिनकी relatives की death हो जाती है they go into trauma or desperate, isn't it? अगर किसी suppose किसी mother का बेटे की death हो जाती है तो she goes in a depression, then situation of many orphan children and elderly become very awkward where their support is lost। कभी कभार देखोगे earthquake के टाइम में या फ्लड्स के टाइम में पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, बच्चा रह जाता है, तो दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन कि वो बच्चा कहाँ जाए, फिर उनको ऑर्फनेज में रहना पड़ता है ज़िंदगी भर। पीपल हैव टू फेस मैनी डिफ़िकल्टीज इन लाइफ। Then effects on economy, even the money loss is there, a great loss. A huge capital has to be created for rehabilitation work after disaster. Capital means पैसा, तो वापस से पैसा लग जाता है किसी भी ऐसे एरिया को वापस से डेवलप करने का। अगर कहीं अर्थक्वेक आ जाता है, पूरी बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाती है, लोगों की डेथ्स हो जाती हैं, तो उसको वापस से रिहैबिलिट करने के लिए लाखों और मिलियंस ऑफ मनी इज़ बीइंग रिक्वायर्ड टू रिहैबिलिट दैट एरिया। ओके, देन डेवलपमेंट वर्क के लिए पैसा चाहिए, बहुत बार पैसे की कमी हो जाती है तो वर्क जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। अ प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इमर्जेस ड्यू टू इंडस्ट्रियल यूनिट्स आर रीएक्टिवेटेड। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाता है क्योंकि जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं वो टूट जाती हैं, डैमेज हो जाती है, तो उनका काम काज स्टॉप हो जाता है, तो पीपल बिकम अनएम्प्लॉयड। ओके, इकोनॉमी ऑफ डिजास्टर इफेक्टेड एरिया बिकम्स वीक, पूरी इकोनॉमी खराब हो जाती है। नाउ सोशल इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर्स, पीपल माइग्रेट, ओके, उस एरिया को छोड़ के दूसरी एरिया में चले जाते हैं, तो दैट एरिया बिकम्स निगलेक्टेड एंड बैरन टाइप, और जहाँ दूसरी जगह जाएंगे वहाँ पे भी इट बिकम्स क्राउडेड, तो वहाँ पे खाने पीने का प्रॉब्लम, रहने का प्रॉब्लम, एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। सोशल फेस्टिवल्स एंड पब्लिक सेलिब्रेशंस बिकम अनइंटरेस्टिंग कंपेयर टू अर्लियर टाइम। अगर कुछ ऐसा डिज़ास्टर आता है और उसके बाद इमीडिएटली सपोज कोई फेस्टिवल है तो पीपल आर नॉट एबल टू सेलिब्रेट दैट फेस्टिवल फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इट टेक्स मैनी ईयर्स टू रिस्टोर द ओरिजिनल चार्म, वापस से उसी चार्म के साथ, उसी एंथुजियाज्म के साथ फेस्टिवल बनाना बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। सोशल ऑर्गेनाइजेशंस बिकम वीकर ड्यू टू द चेंजेस इन द सोशल नेटवर्क।
Now the last one, rehabilitation of the disaster, कि उस एरिया को रिहेबिलिटेट करना है, वापस से आगे बढ़ाना है, उसमें लोग वापस से अच्छी तरह रहें, तो क्या करना है. At the time of the disaster, first comes the rescue operation followed by compensation or relief and lastly the rehabilitation which differs according to disasters. पहले जब भी ऐसा कुछ डिज़ास्टर होता है तो रेस्क्यू ऑपरेशन आ जाता है, फिर गवर्नमेंट कंपेंसेशन देती है कि लाखों रुपए जिनके घर टूट गए हैं, बिखर गए हैं, तो उनको लाखों रुपए कंपेंसेशन मिलता है. अगर किसी की डेथ हो जाती है तो भी उनको कंपेंसेशन मिलता है. देन गवर्नमेंट टेक्स एफर्ट्स टू रिहेबिलिटेट दैट एरिया, वापस से बसाने की कोशिश करती है. दैट टू डिपेंडिंग अपॉन द डिज़ास्टर, कौन सा डिज़ास्टर हुआ है उसके हिसाब से सब तय किया जाता है. Many buildings have to be reconstructed after an earthquake, flood or cyclone. New employment has to be created after drought and provision for farm implements has to be made in agricultural field. अगर earthquake आया है तो new buildings construct होंगी. ओके, floods और cyclone आया है, buildings गिर जाती है तो वापस से buildings construct करनी है. ओके, अगर drought आया है तो वापस से उस एरिया में पानी का सप्लाई कैसे होगा, न्यू फार्म्स कैसे कल्टिवेट होंगे, दैट अरेंजमेंट्स हैव टू बी मेड. After viral epidemics, programs of mass education and public awareness have to be arranged for safety in future. ऐसा कोई epidemic आ जाता है तो अभी तो you will know कि through media they had made the awareness, isn't it? But फिर भी लोगों को इस टाइप की awareness आती रहे तो वो books में पढ़ाया जाएगा, मीडिया में दिखाया जाएगा. It is difficult to rehabilitate a family where there is one or two survivors. अगर कोई फैमिली में से किसी की डेथ हो जाती है और एक दो सर्वाइवर रह जाते हैं तो उनको कहाँ वापस से रिहेबिलिटेट करना. लाइक इफ द चिल्ड्रन बिकम ऑर्फन तो उनको कहाँ रुकाना है, कौन से ऑर्फनेज में देना है, दैट इज़ लिटिल बिट डिफिकल्ट. इफ द सर्विसेज ऑफ द साइकेट्रिस्ट इज नॉट प्रोवाइडेड टाइमली टू पर्सन अंडर ट्रॉमा आफ्टर विटनेसिंग अ डिजास्टर, इट मे ब्रिंग एडवर्स रिजल्ट्स. मैनी टाइम्स पीपल सी सच डिजास्टर्स और ट्रॉमा में चले जाते हैं. उनको मेंटल स्ट्रेस की वजह से they are not able to behave properly, तो उनके लिए साइकेट्रिस्ट का अरेंजमेंट्स होना चाहिए. ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट आर नेसेसरी टू दो सर्वाइवर्स हु बिकम हैंडीकैप्ड परमानेंटली. ओके, ऐसे ट्रेनिंग शुड बी गिवन. अगर कोई हैंडीकैप्स हो जाते हैं तो ट्रेनिंग दी जाती है सो दैट वो अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए आगे काम कर सके. इफ़ दे आर बीइंग हैंडीकैप्ड एंड एम्प्लॉयमेंट इज बीइंग गिवन टू देम. Thus, the rehabilitation work after disaster is a very challenging one for the government, especially for the government. हाँ, लोगों के लिए भी चैलेंजिंग बहुत है क्योंकि हमको अगर ऐसा डिज़ास्टर फेस करना है तो हम वापस से कैसे उसको मैनेज करें. लाइक साइक्लोन के टाइम में हमने देखा, कोरोना के टाइम पे हमने देखा, आफ्टर लॉकडाउन हाउ मच स्ट्रगल वी हैव टू डू टू कम आउट ऑफ दैट लॉकडाउन. सो मैनी पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स. तो उन जॉब्स की जो जॉब्स चले जाते हैं, वापस से उन जॉब्स को कैसे रिकवर करना है, वापस से कैसे इनकम बढ़ानी है. सो एवरीबडी हैज़ टू फेस वन चैलेंज और दी अदर. इट कैन बी फुलफिल्ड ओनली थ्रू प्रॉपर प्लानिंग इम्प्लीमेंटेड स्टेप बाय स्टेप. सब प्लानिंग एंड स्टेप बाय स्टेप होता है. ओके, सो ऑल द टॉपिक्स वी हैव कवर्ड. Go through all the topics. Okay, the last topics are being covered on page number 153, 154 and 155 of your textbook. Okay, thank you beta. Have a nice day.